Okay, so in today's class we will discuss what do you mean by eddy currents. It is a very common phenomenon what you see in some and most of you might have come across it. Okay, basically in electrical appliances which are run on AC alternating current, its application is used. So first of all, let us understand okay, what is eddy currents, where it is formed, and what are the methods of reducing eddy current are equally important. Okay, those are also equally important. So first of all, let us understand eddy current by the diagram over here, where you can see two magnetic poles of fixed strength. Okay, in it, if I have hung a plate which is having not very less thickness, we can say, means it is not a wire which is of lower cross sectional area. Basically, when a coil is placed inside the magnetic field and it is moved in and out of this magnetic field, what will happen? A current will be induced into it due to the according to the Faraday's law and by the concept of electromagnetic induction. But now over here, this plate which is hung in between the two poles, that is inside this magnetic field vector B. Magnetic field will be running from north to south. So what have we done? A plate of some thickness, means its thickness would be very less, but its cross sectional area is not like a wire. It is having one comparable cross sectional area. मतलब एक solid mass, एक plate imagine कर लो जिसको आपने बीच में टंगा दिया और इस प्लेट को आपने एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया ऐसे करके, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया. सो व्हाट विल हैपन? This plate would start moving in and out of this magnetic field like this. Okay, so what will happen? The area of this plate associated with this magnetic field, which is uniform between the magnets, would keep on changing. If the area is changing, means the flux associated with this plate will also change. If the flux is changing, there would be an induced current inside this plate due to the motion of charges according to Faraday's law. Its concept would be the same, that how much will it be induced. Okay, it is according to the rate of change. What direction it will be induced according to Faraday's law, that it will oppose its cause. But what is the form or direction of this induction and what type it is being induced, that is our concern over here. अब क्योंकि वहां पर हमारे पास कॉइल था जिसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम था, ठीक है, तो वहां पर जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होता था दैट वाज यूनिडायरेक्शनल, मींस इट विल फ्लो आइदर फ्रॉम वन एंड टू अदर और फ्रॉम अदर एंड टू दिस साइड. Both this direction is possible. But when a current or a induced current is introduced in a solid metallic mass, something like this, which is having comparable thickness, it's not a wire, it is not a wire, but it is having some comparable thickness. Inside this, the current which is induced is in the form of a circular concentric circles. It looks like a whirlpool. Whirlpool means वो टाइट भंवर होता है, ठीक है, इस शेप में इसके अंदर करंट इंट्रोड्यूस होता है, किसके अंदर, जो प्लेट जिसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है. सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ दिस करंट which is introduced or induced inside a solid metallic mass which is in the form of circular whirlpools, which is also called as eddies. This type of current which is introduced in this because of electromagnetic induction is called eddy currents. This eddy current is very general phenomenon. Let us think about, over here we are making the plate to move in and out of the magnetic field. This magnetic field is causing the change in the flux and this motion is causing change in the flux and there is a induced current. अब हम इसका उल्टा सोचते हैं, मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, मतलब इस क्या बोलते हैं, एक एरिया है, एक कॉइल है जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पास आउट हो रहा है. बेसिकली सपोज हमारे पास एक ऐसा कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर का कांसेप्ट समझा रहा हूं आपको, इसके बाद में हम डिटेल में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है. तो
तो ये देखो ऐसे करके हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है जिसमें मैंने एक तरफ में ऐसे करके कुछ कॉइल्स बांध दिए और दूसरी तरफ में भी कॉइल्स बांध दिए। इसमें से मैंने अल्टरनेटिंग करंट पास किया। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर पर आता है, अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है कि करंट ना यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज करता है। एसी इज अ कंप्लीट चैप्टर इन स्टडी इन सिलेबस, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी भी चेंज होती है। तो सपोज इस कॉइल में से अगर एक करंट जा रहा है, इस कॉइल में से अगर एक करंट जा रहा है, तो वो करंट अगर एसी है तो एसी का मतलब उसकी इंटेंसिटी भी कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वी आल्सो नो दैट व्हेन ए करंट passes through a coil, this is something like a solenoid, it will also produce its magnetic field, वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मींस दिस कॉइल will also produce magnetic field over here, ठीक है। It is found on a, suppose a solid metallic core, this is what metallic core, metal core, this is a metal core। अब ये अगर एक सॉलिड मेटल कोर है तो क्या हो गया, ये कंडीशन कैसा हो गया, दिस मेटालिक कोर इज केप्ट इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, चेंज हो रही, कम ज्यादा हो रही, ठीक है। तो मैग्नेटिक, जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा उसकी भी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। कम ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस कोर से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी तो चेंज होगा। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब ईएमआई प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इस कोर के अंदर प्रोड्यूस होगा। अब ये कोर अगर एक वायर होता तो यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता, बट ये कोर कैसा है, मोटा है, ठीक है, बड़ा है, जस्ट लाइक दिस वन, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, इसमें भी क्या होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होगा। अब एडी करंट करता है, तो देखो यहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए, तो एडी करंट इज नॉट आवर यूजफुल करंट। हमको देखो यहाँ पर एडी करंट के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, प्लस हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज बीइंग वेस्टेड, व्हिच वी डू नॉट वांट। बेसिकली ये कहां पर होता है, ये कोर ट्रांसफार्मर्स में होता है। तो ट्रांसफार्मर्स अलग काम करते हैं, देखेंगे हम लोग। बेसिकली हमको यहां समझ आया कि इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, कोर ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो हमको ये नहीं करने देना है। तो दिस इज वेयर एडी करंट इज नॉट यूजफुल टू अस, इट इज कॉजिंग अस लॉस, ये बोल सकते हैं। So this is where eddy currents are also seen, where it is of no use to us. So what is the definition and what is the concept of eddy current? Eddy currents are currents induced in solid metallic masses, something like this, okay, when magnetic flux linked with them changes। मतलब वायर से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। बट वो वायर की जगह अगर हम सॉलिड मास रख देते हैं, कुछ ऐसा, कुछ पतला बड़ा, कुछ भी बड़ा प्लेट रख देते हैं, ब्लॉक रख देते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट ऐसे वर्लपुल के शेप में प्रोड्यूस होगा, और वो वर्लपुल के शेप को हम क्या बोलते हैं, उस करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स, ठीक है। ये समझ आया सबको एडी करंट का कंसेप्ट। Okay, so now if you have understood what do you mean by eddy current, and there are some losses, which loss of energy which we incur due to the formation of eddy currents. So it means eddy currents needs to be minimized. Eddy currents, when they are formed, whenever they are formed, and as much they are formed, it needs to be minimized. So this minimization of eddy currents can be done by the simple method which is known as laminating the core. For suppose this is my block which is subjected to variable flux. Anyhow, I don't know, by the variation of magnetic field, by the variation of area, or anyhow. But this block is subjected to change in magnetic flux. If that magnetic flux changes, the eddy current will be formed inside this solid core, something like this form, which would be of a higher magnitude. But these eddy currents can be minimized by just forming these cores, not by a single block, but by a number of plates combiningly stick together by a insulated film between them. These cores are then, this core is formed by number of plates of the same metal and with an insulating coat between the two plates when they are joined together, okay. If we form like this, what will happen, the eddy currents would be distributed on a single plates
Rather than formation in the solid block, it would be of higher magnitude, but they will be distributed on the number of plates in smaller magnitudes, and hence the magnitude of the total eddy current would be reduced. So what is the simple and one of the former method by which we can reduce eddy currents? It is by laminating the solid core. Plain laminating the solid core means not forming the core by a single block, rather by number of sheets stuck together to form a solid core by an insulating plate between them. This is how you reduce the effect of eddy. There are some places where eddy currents finds its importance, or we can say application, where it is important, it is of use to us. First being induction furnace, ION, induction furnace. Furnace is a place where you heat something. किसी कहीं पर हम कोई चीज को गर्म करते हैं, वो जगह होता है furnace. If that heating is done by induction, electromagnetic induction, then it is called as induction furnace. Most of the boiler plants also use induction part to heat some other appliances, ठीक है, where coal is inaccessible or can be electricity is cheap comparably. तो ये इस टाइप पर हम इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं. छोटे पार्ट्स को बेसिकली बहुत बड़े स्केल पर अगर हमको हीट करना तो हम नहीं यूज कर सकते, बट बड़ी छोटी चीजों को हीट करने के लिए इंडक्शन फर्नेस. तो क्या होता है, जिस पार्ट को सपोज इट इज ए मेटेलिक पार्ट एंड इट इज टू बी हीटेड, it is placed inside a changing magnetic field, rapidly changing magnetic field. Rapidly changing magnetic field can be simply produced by the help of AC current, very fast. कितना रैपिड है, 100 हर्ट्ज का तो हमारे घर पे ही आता है, ठीक है, ओके. 50 हर्ट्ज हमारे घर पे ही आ रहा होता है, तो उससे हीटिंग होता है. इंडक्शन कुकर जो आप लोग देखे हो वो भी वैसा ही है एक तरह से, ठीक है. तो उसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में अलग पढ़ना पड़ता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एसी दिया जाता है, तो वो कंटेनर को गर्म नहीं करता, वहां पर हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन के थ्रू गर्म करते हैं. मींस द सब्सटेंस व्हिच इज टू बी हीटेड गेट्स हीटेड अप रादर देन द यूटेंसिल. यूटेंसिल बाद में गर्म होता है सब्सटेंस के हीट को कंडक्ट करने के बाद, ठीक है. तो वो इंडक्शन कुकर भी उसी के कंसेप्ट पे काम करता है. तो इंडक्शन फर्नेस इज एन एरिया where the metal which is to be heated is placed inside a varying magnetic field, and hence we saw that in a varying magnetic field eddy currents would be formed, and that eddy current is used to produce heat, sufficient heat to heat that particular device. तो इंडक्शन फर्नेस का ये कंसेप्ट है. दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. गैल्वेनोमीटर देखा है हमने, वोल्टमीटर देखा है. ये सब में क्या होता है, कॉइल होता है जो कि मैग्नेट के बीच में फिटेड होता है, और वो कैलिब्रेशन के हिसाब से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उतना वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है. तो हाँ भाई, हमने कंसेप्ट देखा था कि अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखते हैं तो उसमें एक्टिंग टॉर्क मेरा इलेक्ट्रिक करंट देता है, और रिस्टोरिंग टॉर्क मेरा कौन देता है, स्प्रिंग देता है, जो हमारा कैलिब्रेटेड स्प्रिंग होता है, जिसको हम स्प्रिंग क्या हेलिकल स्प्रिंग बोल दिया था, व्हिच वाज द कैलिब्रेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो वो काम करने के बाद भी व्हाट हैपेंस, सपोज द पॉइंटर when you just apply the current, it moves from its place and just within a short period of time comes to its original reading, suppose something, okay, this is where it has to be and this is where it reached. But what happens, it does not, अगर हमारे पास ये यूजुअली जो उसमें एप्लीकेशन हो चुका है वो आराम से जाकर के रुक जाता है, बट ऐसा होता नहीं. That is achieved by electromagnetic damping. Damping का मतलब होता है किसी चीज के ऑसिलेशन को रोकना, है ना. 11th क्लास में अगर हम देखे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते थे. सिंपल, अगर हम एक स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट को टंगा दें और उसको ऐसे छोड़ दें तो वो ऑसिलेट होता रहेगा, और उसको अगर तुम पानी में रख के ऑसिलेट करोगे तो वो जल्दी रुक जाएगा, ठीक है. तो दैट इज व्हाट डैम्पिंग. तो ओवर हियर दिस पॉइंटर आल्सो बिफोर कमिंग टू रेस्ट it starts oscillating about its mean position. तो बहुत देर तक होता रहेगा, ठीक है, और उतना देर के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते टू टेक आवर रीडिंग. सो दैट डैम्पिंग इज फास्टेंड और इज अचीव्ड early by the help of electromagnetic damping. Why? Because eddy currents which are formed inside that coil which is oscillating in the magnetic field would be trying and would be such that it opposes the motion. तो सपोज मेरा कॉइल आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर जो एडी करंट है उसको वापस पीछे लाने की कोशिश कर रहा है, फिर इधर आने के बाद जब पीछे जा रहा है फिर उसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है. तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओबेज फैराडेज लॉ, दैट इट अपोजेस इट्स कॉज. तो
अगर ये ऑसिलेट होना चाह रहा होगा तो एडी करंट क्या करेगा, उसको जल्दी से डैम्प करके अपनी जगह पर ला करके फिक्स करने की कोशिश करेगा। दैट इज वेयर यू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स आल्सो सिंपल कांसेप्ट ये लगाओ। ड्रम्स जो है हमारी गाड़ी में ड्रम ब्रेक होता है, ठीक है, व्हील्स के अंदर, बेसिकली ट्रेन्स वगैरह में, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, ड्रम व्हील्स से अटैच्ड है, बड़े ड्रम्स हैं और वो क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। So whenever you have to stop them, okay, if we pass a very high rapidly changing magnetic flux with the associated with the drum, तो उसमें भी क्या होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। और एडी करंट क्या करना चाहते हैं, इट इज सच दैट इट विल अपोज द मोशन। तो सपोज द ड्रम्स वर मूविंग फॉरवर्ड, एडी करंट्स विल ट्राई टू मूव इट बैकवर्ड एंड हेंस इट विल स्टॉप इट्स मोशन। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में भी एडी करंट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस स्पीडोमीटर में भी वो ये कैलिब्रेशन ही तो है ना, स्पीडोमीटर है तो क्या कर रहा है, वो जिस स्पीड से चक्का घूमेगा उस स्पीड से आपका वो मेटल जो उसके साथ अटैच्ड है, जो स्पीडोमीटर में लगा होता है छोटा सा पार्ट में, एक वायर जाता है देखना, चक्के से जाकर के ऊपर लगता है, तो वो वायर क्या करता है, बेसिकली टर्न्स को ना ऊपर ट्रांसफर करता है जितने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, और ऊपर में लगे हुए स्पीडोमीटर के अंदर लगे हुए मेटल को भी प्रोटेक्ट करता है। वो मेटल भी फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है छोटे से, तो क्या होगा, it will also move according to the speed, how much fast it is, and hence also if your speedometer is क्या बोलते हैं damaged, what happens, you can see the flickering of your speedometer, okay, that is because that eddy current has been lost, its effect has been lost, okay, so it starts flickering before completely damaging itself. So speedometer also electromagnetic damping is used for getting the speed, okay. So these are some parts where you see the good effects or the applications of eddy currents. Okay, so now the topic next we will take is self induction. Self and induction, you might have seen at some or the other time in your life, you might have observed that at the time of night, रात के समय अगर हम स्विच को बंद करते हैं या चालू करते हैं तो कभी कभार स्विच के अंदर तरफ में एक स्पार्क हमको दिखाई देती है, हमको लगती नहीं है वो, बट हमको दिखाई देता है कि वहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसी का बड़ा रूप अगर आप देखते हो, कभी बाहर आपके घर के बाहर कोई इलेक्ट्रिशियन पोल पर काम कर रहे होते हैं, वहां पर एक बड़ा लीवर होता है जिसको हम उठाते हैं और नीचे बंद करते हैं, तो जितने भी बार चालू करेंगे वो भले ही बहुत धीरे से करें या बहुत धीरे से भी स्विच ऑन करें स्विच ऑफ करें, there would be a spark produced at that junction above where the current passes. That is because of self induction. So now let us understand what do you mean by self induction. Self means खुद का, induction means induced EMF. हमको induction के बारे में तो पता है. Self induction. Look at this diagram over here where I have placed a simple coil. Now we will start calling this coil as an inductor. हम इसको क्या बोलेंगे अब? Inductor. अब इसके बाद ओके, इस सोलिनॉइड आपका हमारे लिए, अब हम इसको क्या बोलना शुरू करेंगे, एक इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर हम लोग बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, एक कॉइल जो कि किसी इंसुलेटेड कॉइल किसी वायर जिसके ऊपर लपेटा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा भाई, इंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस में एक बैटरी लगाई और एक प्लग की लगाया, टैप की लगाया, टैप, ठीक है। बैटरी तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, तो ये सर्किट में कांस्टेंट करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो बैटरी करंट दिखा रहा है, तो बैटरी करंट ऐसे करके फ्लो करेगा इसके अंदर, दिख रहा है सबको, ओके। दिस इज हाउ द बैटरी करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ओके, बैटरी करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बैटरी करंट। नाउ व्हाट हैपेंड एट दैट इंस्टेंट वेयर द की वाज प्लेस्ड और द टैप की वाज बीइंग प्रेस्ड, will the current reach its maximum value throughout, फट से एकदम चालू हो जाएगा कि नहीं, ये जब तक टैप कर रहा है उसमें भी तो कुछ ना कुछ टाइम क्या होगा, इलैप्स होगा, तो द करंट will flow through this as I only, complete current I flow होगा उसमें से, ठीक है। but वो करंट एकाएक अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पकड़ेगा, जब तक वो उससे टच हो रहा है, तो टच होने के एक मिली फ्रैक्शन सेकंड में कम करंट फ्लो होगा जितना कांटेक्ट है उसका, फिर उसके बाद जब टोटल कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद धीरे से करंट पूरी वैल्यू को पकड़ लेगा। सो फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दैट करंट चेंजेस इट्स वैल्यू, करंट की वैल्यू वहां पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट चेंज हुआ मतलब क्या चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉइल के अंदर, बिकॉज ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इट्स ओन, ये खुद भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन, सोलिनॉइड, because of this battery current flowing through this through a solenoid, it produces its own magnetic field,
And now what happened? Because when at the time of pressing the key, the amount of current flowing through this changed, and because of change in the current, there would be a change in magnetic field, and because of the change in magnetic field, there would be an induced EMF. And induced EMF is how much? कैसा होता है? It is induced such that it opposes its cause. तो cause मेरा current बढ़ जा रहा है, तो ये कैसा आएगा? उल्टा. So for a fraction of second, you will see a induced EMF inside the coil which is opposite to the direction of actual current, और ये दोनों जाकर के कहां पर मिलेंगे? देखो करंट यहां से प्रोड्यूस होकर आगे जाना चाहता है और ये कैसा आ रहा है? उल्टा आ रहा है, तो जाके कहां पर मिलेंगे? जंक्शन पर मिलेंगे. तो जाने वाला करंट और वापस आने वाला करंट आकर के जब एक बार स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. ओके. सेम चीज कब होगा? जब ये खोल भी रहे होंगे, जब हम स्विच को बंद कर रहे हैं उस टाइम पर भी क्या होगा? करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, जैसे हम उठा रहे हैं तो कुछ टाइम इलैप्स होगा, टाइम इलैप्स होते के टाइम पर क्या होगा? it will change its magnitude of current and hence there would be an induced current which would be the opposite direction. ये चीज समझ में है? सबको समझ में है? ओके. दिस इज हाउ सेल्फ इंडक्शन वर्क्स. अब देखो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स. और ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो बैटरी करंट आई है इसके ऊपर. सो वी कैन से दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन द करंट. ओके. While removing this proportionality symbol, we introduce a constant over here that is known as L, which is also known as coefficient of self-induction. This L is known as coefficient of self-induction. Phi is equal to Li is a very important formula which you need to look out for over here. Li. Okay, phi is equals to Li. L is the coefficient of self-induction. Okay. Next, also we know E is equals to minus d phi by dt होता है. यहाँ पर phi की वैल्यू डाल दो, d by dt of Li. Okay, L मेरा कांस्टेंट है, d by dt of I मेरा फॉर्मूला हो जाएगा. So we will get the magnitude of induced EMF due to self-induction in this coil as minus L d I by dt. ये फॉर्मूला भी याद कर लो. ठीक है. And you can see the definition for self-induction. What is self-induction? The phenomenon of production of induced EMF in a coil when the changing current passes through it. When does the changing current passes through it? At the time of switching on and switching off. ठीक है. समझ में आ सबको?